خبر یہ ہے کہ امریکہ کے ہر اس اقدام کو جو مسلمانوں کے خلاف ہے، فلسطین کی ریاست کے خلاف ہے اور اسرائیل کے وجود کو تقویت بخشنے کے لیے امریکہ جو کچھ بھی دنیا میں کر رہا ہے، پاکستان اب اس کا باقاعدہ حصہ بن رہا ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ ماہ کے اندر ایسی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا گیا بلکہ ان کے ایک جرنیل کو بھی پاکستان کا ایک اعزاز بخشا گیا۔ یہ تمام اشارے امریکہ کو ایک طرح سے خوش کرنے کے لیے اور انہیں پاکستان کے معاملات میں آنکھیں بند کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام منتظر تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد عمران خان کی رہائی اور جمہوریت کے ریسٹوریشن کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے، اور ایسا ہم نے ایکسپیکٹ کیا، لیکن دو جنگوں نے، جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، پاکستان اور اس خطے کے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ اب یہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جن کا تعلق خاص طور پہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو یہ قربت بڑھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی حکومت کے درمیان، اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ویورز، وادی تہرا کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور پھر ان ویڈیوز کے اندر بیک گراؤنڈ میں آپ کو گولیاں بھی ان کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ یہ واقعہ کیسے شروع ہوا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن جو سب سے اہم اعلان مراد سعید کی طرف سے کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مراد سعید نے کہا تھا کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے کہ پاکستان کی عوام باہر نکلے، اور ہم کب تک جنازے اپنے اٹھاتے رہیں گے، اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ میرے لیے وہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی مشکل تھا، اور جب اس ویڈیو کو دیکھا کہ ایک گاڑی ہے، ایک بختر بند گاڑی، اس کے بالکل ایج کے اوپر ایک بیٹی کی لاش کو رکھ کر لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارا نیشنل میڈیا یہ نہیں دکھاتا، لیکن یہ لوگ جن کے بچے اس طرح شہید ہوئے، یا قبائلی علاقے کے اندر جس طرح لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یہ آخر کب تک سلسلہ جاری رہے گا۔ مراد سعید صاحب نے اس کا ایک اعلان کیا اور انہوں نے کچھ باتیں کہی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد جانے کا اعلان کیا۔ ہمیں اب پرامن مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف کرنے کے لیے جگہ بلانا ہے۔ آپ کو بھی یہ اطلاع دے دوں کہ 5 ماہ پہلے خیبر تہرا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا، جس کی صوبائی حکومت اپنے صوبے کے حالات اور عمران خان کی پالیسی کے مطابق اجازت نہیں دے رہی۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے اگلے 1 آدھ ماہ میں اراکین صوبائی اسمبلی کو نااہل کر کے حکومت تبدیلی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مائنز اینڈ منرلز کے معاملے میں اپنا ایک موقف رکھتی ہے، اور عمران خان کی اجازت کے بغیر یا پھر اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے، کیونکہ اس اسمبلی سے ہم نے بہت کچھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا جس میں عمران خان کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن آپ کے مقامی لوگ، آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے جو اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کا ووٹ بینک آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مختلف علاقوں کے اندر احتجاج اور ریلیاں یہ شروع ہو سکتی تھی، حکومت کے خلاف ریلیاں شروع ہو سکتی ہیں، احتجاج شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے تناظر میں یہ مائنز اینڈ منرلز کا بل ابھی تک پاس نہیں ہوا، اور اسے آپ اس پریشر کے نتیجے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، اب حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ ان علاقوں کو جو ضم کر دیے گئے فاٹا کے پی کا وہ حصہ ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے اور اس کا ڈائریکٹ کنٹرول مرکز کو دے دیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے جو موقف اپنایا ہے کل کے واقعے کے حوالے سے، کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے سیدھی فائرنگ کرنے سے پہلے کوئی نہ وارننگ دی گئی، نہ مذاکرات کا عمل ہوا، بلکہ سیدھی فائرنگ کی گئی جس کا کسی صورت کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اب یہ وادی تہرا میں فائرنگ کا جو واقعہ ہوا، اس کے اوپر یہ جرگہ بلایا گیا، اور سیکیورٹی کے جو حکام تھے وہ، اور دوسری طرف سے جو قبائلی جتنے بھی بڑے تھے وہ بیٹھے، اور جرگہ اور مذاکرات جو ہیں وہ کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بریگیڈیئر کی زیر نگرانی ہونے والے جرگے میں قبائلی جماعتین نے 5 بڑے مطالبات پیش کیے۔ دیکھیں، آپ کو ہر مسئلے کا حل بیٹھ کر حل کرنا ہے۔ اگر ان علاقوں کے اندر آپریشن ہے تو وہاں کی عوام کو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان تمام خوارج کو، جن کا کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی، ان کو آپ پکڑیں، اور وہاں کی مقامی قیادت۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب اس قسم کے آپریشن ہوتے ہیں، اس میں جو نقصان ہے وہ ان علاقوں کے اندر عام آدمی کا ہوتا ہے جس کا اس جنگ سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن کے اندر لوگ سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، تو گولی جب چلتی ہے، اس چیز کا کیسے فیصلہ ہوگا کہ گولی کس نے چلائی اور جوابی حملہ کیسے کیا گیا؟ لیکن الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے۔ وہ بچی جو شہید ہو گئی اور جس طرح سے اس کو مارا گیا، اب یہ احتجاج شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کی جو سچویشن ہے، اس پر نیشنل ہماری پالیسی کیا ہے وہ آپ کو پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر نہیں پتہ لگ رہی۔ اسی لیے اس جرگے کے اندر جو مطالبات رکھے گئے، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 10 سالہ بچی کے قتل میں ملوث اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے، اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے میرا نہیں خیال کہ اس کو تسلیم کیا جائے گا، یا پھر اس قسم کے جو مطالبات ہوتے ہیں
उसके ऊपर कोई FIR हो जाए इस मुल्क के अंदर। जो 9 मई हुआ और जिस तरह से लोगों को रास्ते से हटाया गया, आज तक वो CCTV फुटेजेस, वो गवाह आप अदालतों में पेश नहीं कर सके। सिर्फ पर्दे के पीछे छुप कर सुनने वाले की गवाही के ऊपर इमरान खान और इमरान खान जैसे कई लोग जो इस वक्त उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं, उन्हें सज़ा सुना दी जाती है। अब FIR का जहाँ तक ताल्लुक है, ये नामुमकिन सी बात है। मुतालबा ज़रूर जरगे ने किया, लेकिन इसे तस्लीम नहीं किया गया। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कब्जे में लिए गए मकामी शहरियों के घरों को 15 रोज़ के अंदर खाली किया जाए। अब अगर उसके अंदर दहशतगर्द मौजूद भी थे तो दहशतगर्दों को पकड़ें, ना कि उन मासूमों के घरों को आप अपने कब्जे में लेकर और उनको खाली करा दिया जाए। ये दूसरा मुतालबा। मकामी आबादी पर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। अच्छा, अब ये जो ड्रोन है ना, ये एक वाहिद लास्ट रिजॉर्ट है इन तमाम लोगों से निपटने के लिए। अब जब ड्रोन हमला होता है ना, तो ये मालूम कैसे होगा कि जिनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं, जिस कैमरे से सभी मनाजिर देखे जाते हैं, ये वाकई ख्वारिज थे। आपको व्यूअर्स याद होगा कि ये जो नंबर्स है ना, कैजुअल्टीज़ जितनी बढ़ती हैं उसमें इस इलाके के अंदर, क्योंकि इंसान की पाकिस्तानी हो, कबायली इलाके का कोई बंदा हो, तो उसकी ज़िंदगी की क्या कीमत होगी। तो इसलिए आप ड्रोन मारें, आप इनको मारें, इनके बच्चों को मारें, नोबडी विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। अगर कोई अमेरिकन होता ना, तो फिर अमेरिका ने बदला लेने के लिए अपनी लाखों फ़ौजों को उस इलाके में उतारना था। तो ये डिफरेंस है। हमारी ज़िंदगियाँ तो भेड़ बकरियाँ, पाकिस्तान की आवाम, और अगर कोई अमरीकी होता तो एक डिफरेंट सिनेरियो होना था। तो इसलिए ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन जो कैजुअल्टी फैक्टर है ड्रोन हमलों से बहुत बढ़ जाता है। और मैं आपको बार बार तमाम दोस्तों से ये चीज़ें आपके साथ मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर कबायली इलाकों में पिछले कई दहाइयों से चलता क्या रहा। पहले अमेरिका की जंग, उससे पहले रशिया की जंग, फिर मुजाहिदीन बनाए, फिर वो दहशतगर्द बन गए, और फिर न जाने क्या क्या नाम दिया गया, और फिर इकराए के कातिल। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप एक पूरी नस्ल तैयार करें जिनके हाथों में बंदूक हो और उनका पेशा ये बन जाए, उनका नस्बुलैन ये बन जाए, उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो फिर जब जंग ख़त्म होती है तो उन्होंने हथियार कहाँ इस्तेमाल करने थे। एक रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। और जिस मकसद के लिए जो मुजाहिदीन का नाम दिया गया, वो आज आपको मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में लोग नज़र आएंगे। और अब तो खैर वो कराए के कातिल लोग हैं। पाकिस्तान में ये सरगर्मियाँ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये हो रहे हैं। वो किसी न किसी की प्रॉक्सी बनकर रियासत के ख़िलाफ़ हमला करते हैं, या फिर प्रॉक्सी बनकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ हमला करते हैं। तो ये सिर्फ उस ओवर द ईयर्स, डेकेड्स की जो पॉलिसीज़ इस खित्ते में टुवर्ड्स कबायली इलाका जात के अंदर जो रही है, इसका एक नतीजा हमें नज़र आता है। फिर से चेक पोस्टों पर शहरियों को गैर ज़रूरी हरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। अब ये कैसे तय होगा, ये भी जरगे में सवाल रखा गया। फायरिंग से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को माली मामला फराहम की जाए, इस पर जी इतफाक़ हुआ है। और जो मुतालबा तस्लीम किए गए, ब्रिगेडियर ने हर शहरी के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए और हर ज़ख्मी को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि ज़ख्मियों का मुफ्त इलाज भी कराने की यकीन नहीं कराई गई। ये सही है। पहले मारो, 15 लाख दे दो, पानी में बह जाओ, 10 लाख दे दो। आसान होता है ना जी। अगर आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में देखें तो वहाँ भी मुंह बंद रखने की भी एक कीमत लगा दी गई। हाउस अलाउंसेस, फैसले मर्जी के लेने हैं, जजेस की तनख्वाहें बढ़ा दो, अलाउंसेस, जुडिशल अलाउंस, नई गाड़ियाँ। तो सर ये एक पिकनिक स्पॉट पाकिस्तान इन लोगों के लिए बन गया, पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि हम शिकार हैं और हम शिकारगाह में रहते हैं। इन लोगों के लिए हमारी हैसियत एक शिकार की है। शिकारी आएगा, हमारा शिकार करेगा, नुकसान ज़्यादा हो गया, बात बढ़ गई, लोग एहतजाज करें ताकत के सामने, अवामी ताकत के सामने, फिर इसी किस्म के ऐलानात जो हैं वो किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उनके मुताबिक फायरिंग ख़वारिज ने की। वज़ीर-ए-आज़म का वादी तेहरा के इलाके बाग मैदान में ख़वारिज की फायरिंग से बेगुनाह मासूम और पुरअमन शहरियों की शहादत पर इज़हार अफ़सोस। और पाकिस्तान एक तरफ अफसोस का इज़हार कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी पॉलिसीज़ और हमारा सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है जी अमेरिका के पास। यही वो एब्सोल्यूट नॉट था जिसका जिक्र इमरान खान ने किया। ना अड्डे मिलेंगे, ना तुम्हें हमारे बंदे मिलेंगे, और ना ही हमारी फ़ज़ा मिलेगी जहाँ से तुम मासूमों पर हमला कर सको। वैसे अमेरिका को तो एब्सोल्यूटली नॉट खान साहब ने कह दिया। एक हुकूमत से, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से एक एक्सपेक्टेशन थी, मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों को, लेकिन इन 2 जंगों ने हालात को तब्दील कर दिया। अब वो अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल करने के लिए कुछ कर सकता था, अब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक इत्तेहादी के तौर पर हमें नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान ऑब्वियसली, मैंने कल भी आपको बताया कि कुछ लोग कुछ दो की ये बात है, और हर लंच जो होता है, देयर इज़ नो फ्री लंच। अमेरिकन की ये मशहूर कहावत है, हर लंच के पीछे कहानी होती है। और वो कहानी क्या थी, हमने उनको पाक भारत जंग के अंदर किरदार अदा करने के हवाले से नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने पाकिस्तान के हर उस शख्स की तारीफ़ की जो उन्हें अच्छा समझता है। लेकिन इस तारीफ़ करने वाले में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ कर रहे थे। उन लोगों की हार हुई, और पाकिस्तान ने ये सिलसिला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम नामजद करने तक ये सिलसिला आपको नज़र नहीं आता, बल्कि दूसरी तरफ अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी जनरल माइकल कोरिया को अवार्ड दे दिया और वो पाकिस्तान आए।
यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो रहा है और मादियाँ तक रसाई दी जाएगी। दिस इज सर न्यू एरा, और इस एरा में जब आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद किताबें लिखी जाएंगी, उस वक्त आज के हालात का जिक्र होगा कि किस तरह से अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका को मनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों के ऊपर खामोशी इख्तियार की जाए, अमेरिका को ये बावर करवाने के लिए या फिर उनको अपनी साइड पे करने के लिए हमने अपनी मादनियात के ठेके अमेरिका को दिए, और अमेरिका की एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद नहीं है। ये बात याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो बातें, जो जुल्म डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ और उसकी डीप एस्टेब्लिशमेंट ने किया, डीप स्टेट ने किया, वही कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच राइटर्स ये कहा करते थे कि दे यूज्ड टू गेट द सिमिलैरिटीज बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान, लेकिन आज क्या सब कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मलिहा लोधी ने इसके ऊपर तनकीद की है और उन्होंने क्या कहा, ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही अहम जुमले हैं और ये हर पाकिस्तानी को सुनने चाहिए कि हम किन लोगों को, हमारी सर हिस्ट्री ये है, हमने अपने लोगों को पकड़ कर उनके हवाले कर दिया। कोई बात नहीं, मुल्क में 9 मई की बात की जाती है, लेकिन हमारी सालमियत के ऊपर हमला किया गया। एक मिलिट्री टाउन के अंदर उसामा बिन लादेन साहब जो हैं वो मौजूद थे, अमेरिकन आए, उन्होंने ऑपरेशन किया और हमारे अंदर इतनी भी कौमी गैरत नहीं थी कि हम अमेरिका से ये तो पूछते कि भाई तुम होते कौन हो हमारी सरजमीन में दाखिल होकर ऑपरेशन करने वाले। और व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम नुकता ये है कि उस वक्त ये बराक ओबामा ने अपनी किताब में इसका हवाला दिया कि जब मैंने जरदारी साहब से बात की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ से बात करने वाले के लबो लहजा जो है उसमें गुस्सा होगा, उसमें तनकीद होगी और मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैं हैरान हुआ कि मुझे कंग्रेचुलेट किया गया और कहा गया कि बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाब ऑपरेशन पर। तो ये सब कुछ पाकिस्तान हमेशा से करता आया। आप एम एल कांसी की बात करें, आप इसके अलावा तारीख भरी पड़ी है, रेमंड डेविस को आपने हवाले किया, अपने लोगों को का खून बहाकर एक शख्स यहाँ पर करने क्या आया, उसके बारे में ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि उसके पास यूरेनियम था। वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एजेंट जो यहाँ पर आता है वो दंदनाता फिर रहा है, उसके पास पिस्तौल है। वो किसके कहने पर आया? पाकिस्तान के अंदर ब्लैक हॉक और न जाने कितनी CIA के जो ऑपरेटिव्स थे वो किस तरह से यहाँ पे मूव करते। लेकिन हम क्या करते रहे? हमने क्या अपनी सालमियत, अपनी खुददारी, अपनी ज़मीन को महफूज किया? हमने नहीं किया। हम अमेरिका के कहने पर ओवर द ईयर्स यही काम करते रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जो नया, पंजाबी जी कहते हैं ना जी कि चंद चढ़ाया, तो ये चंद कौन सा चढ़ाएगी मैं आपको बता देता हूँ। और मलिहा लोधी साहिबा ने इसके ऊपर बाकायदा अपना एक जो स्टेटमेंट है वो दिया। वो कहते हैं कि आपको शायद इल्म नहीं कि ये इसराइल के पसंदीदा अमरीकी प्रो जनरल हैं और अमरीकी फ़ौज में सबसे ज़्यादा जनरल इसराइल नवाज जनरल समझे जाते हैं, और मीडिया उन्हें गज़ा पर इसराइल की जंग में अमरीकी फ़ौजी मदद की निगरानी करने का क्रेडिट देता है। वो ईरान पर इसराइली हमले के भी हामी रहे। तो सर ये वो शख्स है जिसने इसराइल की मदद की, और इसराइल क्या कर रहा है? आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी। एक गड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और मुंतज़िर थे कि कब खुराक आएगी, गज़ा आएगी, इमदाद आएगी और हमें मिलेगी। वो ऐसा लगता है कि एक झुंड है, इंसानों का झुंड, और वो टूट पड़ा उस खुराक के ऊपर, और हद्दे नज़र आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और उनकी चीखों पुकार 7वें आसमान तक पहुंच गई। लेकिन अमेरिका बहादुर जिसे हम कहते हैं, एक डरपोक अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। और वो कहते हैं जी कि अगर फ्रांस उन्हें तस्लीम करेगा तो ये गैर मुतवाज़न एक स्टेटमेंट है, अगर तुर्की करेगा तो गैर मुतवाज़न मामला है। अब तो खैर बरतानिया जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, अमरीकी ये जो पॉलिसीज़ इसके ख़िलाफ़ तकरीबन 149 के करीब ग़ालिबन यही नंबर है, यू कैन करेक्ट मी, 100+ नंबर है, जिसमें अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने की अब आवाज़ जो है वो बरतानिया के अंदर भी आपको सुनने को मिलेगी। लेबर पार्टी को करना चाहिए जी, अगर नहीं किया तो इनके हालात यहाँ भी ख़राब होंगे, याद रखिएगा। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अगर सोचता है कि वो तीसरी टर्म के लिए सदर बनेगा तो शायद ये उसकी खामख्याली है, क्योंकि डीप स्टेट उसके खिलाफ है और अब तो खैर अमरीकी अवाम भी उसके खिलाफ हो रही है। अच्छा जी, अब ये जो इसराइली नवाज बंदा है, ये जो जनरल था, इसको उन्होंने अब एक बड़ा अवार्ड जो है वो दे दिया है। व्यूअर्स, इससे पहले हमने ट्रंप को नोबेल इनाम दिया और ईरान पर हमले के हक़ में, और फिर ये जो जेनोसाइड हो रहा है। अब देखिए दुनिया में ना, मैं क्विकली आगे बढ़ना चाहता हूँ, खबरें और भी हैं। दुनिया के अंदर जिस तरह से हिटलर को याद किया जाता है ना, उसके जेनोसाइड और जो कुछ उसने यहूदियों के साथ किया, आज मुसलमानों के साथ इसराइल भी वही कुछ कर रहा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक जेल है फ़लस्तीन को इन्होंने बना दिया जिसमें ना पानी है, ना